So good morning friends and welcome to Wealth Mastery Club। जैसा कि आप जानते हैं आज के दिन पे हम लोग किसी स्पेशल टॉपिक पे बात करते हैं एंड पार्ट 1 ऑफ वेल्थ मास्टरी लास्ट सेशंस में हमने बात करी थी, उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। सो देयर इज अ वेरी गुड सेइंग, वेयर योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज एंड वेयर योर एनर्जी फ्लोज रिजल्ट शोज। So the friends, focus is very much important, right? अगर किसी भी चीज पे आपका फोकस नहीं रहेगा तो you never achieve, you can't achieve what you want to achieve actually, right? So the focus is very much important. Now we are talking about success, how to get the success. So आज मिरेकल मॉर्निंग क्लब में भी हमने कहीं ना कहीं सक्सेस पर ही बात की, ग्रोथ पे बात की, लॉज पे बात की। सो यस, दैट इज वेरी मच ट्रू। आप इंडियन हो, फॉरेनर हो, किसी कास्ट से बिलोंग करते हो, कौन से लोकेशन पे रहते हो, इट हार्डली मैटर्स। दीज आर द यूनिवर्सल लॉज जो हर जगह हर किसी के लिए काम आते हैं। तो सेम विथ सक्सेस। सो if a successful person is following something and by doing so he is getting the success and he is following those laws, so believe me, by following those laws anybody and everybody can get success. And what was the success formula? The success formula was very much clear, and what we discussed last day, that is, first be aware that what actually you want, what is your goal, and then why you want. So if your what and why will be clear, believe me, how will automatically happen. So you want to achieve this, you want to achieve that in your different areas of your life, correct? Could be health, could be wealth, relationship, mental peace, anything. So what actually you want to achieve? So right now you are in a position, that position is called your point A. And where you want to go, where you want to achieve, that is your point B, that is your goal. So journey from point A to point B is the process, and this journey, how you are going to achieve, that will automatically take place if your why will be clear, it will be strong. And that's why last few days, last 2 sessions almost, we worked on our why. We strengthened our why. हमारे why को हमने बहुत मजबूत बनाया, मजबूत किया in terms of wealth, because ये wealth mastery club का सेशन है, wealth mastery सेशन है। So हमने wealth को ध्यान में रखते हुए ही हमने वो 9 क्वेश्चंस का वो एक्सरसाइज करा था, वो असाइनमेंट दिया गया था जिसको आपने किया है, राइट? सो जब आपका व्हाई क्लियर हो जाता है, you need to work on your how. And how you can work on your how? By making a roadmap, by making a plan, by making strategies to achieve your goal. And when your roadmap, your plan is in place, start working on it. It means what? You'll have to take action. You'll have to work on your plan. You need to execute the plan. So जब आप एक्शन लेते हैं, रिजल्ट मिलता है and you achieve the success. So it seems very simple, but there is the gap actually. And लोगों को पता होता है कि उन्हें क्या करना होता है, उसके लिए प्लान बनाते हैं और एक्शन भी लेते हैं, बट रिजल्ट नहीं मिलता है जो उनको चाहिए, एंड सक्सेस से वो दूरी ही रहता है। तो क्यों नहीं मिलता है? सो द प्लान और एक्शन के बीच में देयर आर 3 स्टेप्स, और देयर आर 3 थिंग्स you need to
you need to understand. The first thing, the intention. What is your intention behind achieving this goal? अगर इंटेंशन पॉजिटिव है, बिलीव मी, आप फास्ट फॉरवर्ड होंगे, और नेगेटिव है तो बाय डिफॉल्ट यूनिवर्स आपको बहुत सारे रोड़े लगाएगा, बहुत सारे ब्लॉकेज लेके आएगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव इंटेंशन है, इट्स अबाउट नॉट जस्ट अबाउट यू, मे बी बाय अचीविंग दिस गोल इन अ प्रोसेस, शायद आप लोगों का भी भला कर रहे हैं या समथिंग लाइक दैट, आप दूसरों के बारे में भी सोचते हुए कर रहे हैं, आप देखना यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा। सेकंड, फोकस। फोकस के बारे में जो हमने बात करी, आप कितने ज्यादा फोकस्ड हैं, और फोकस में भी, फोकस का फुल फॉर्म क्या होता है मालूम है? सो बेसिकली द फुल फॉर्म ऑफ फोकस इज फोकस ऑन कॉन्शियसली अंटिल सक्सेस। एंड मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, where your focus goes, energy flows, and where your energy flows, results shows. So the thing what we need to understand is intention, then consciously you need to focus on your goal. And the third thing is you'll have to take the action, but एक्शन सिर्फ नहीं लेना है, पूरे एनर्जी के साथ एक्शन लेना। सो इंटेंशन प्लस फोकस कॉन्शियसली प्लस एनर्जी। आपको क्या अचीव करना है आपको पता चल गया, क्यों अचीव करना है पता चल गया, रोड मैप तैयार हो गया। नाउ उस रोड मैप पे काम करना है पूरे दिल से, पूरे इंटेंशन के साथ। आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, आपकी नीयत पॉजिटिव होनी चाहिए, एंड फुल फोकस के साथ, पूरे एनर्जी के साथ आप अगर एक्शन लेंगे तो रिजल्ट तो पक्का पॉजिटिव ही होगा और आपको सक्सेस मिलेगी। आई होप यू ऑल गॉट द क्लैरिटी अबाउट द प्रोसेस। अगर आप ध्यान से देखेंगे, कहीं ना कहीं रोड मैप तैयार होता है, एक्शन प्लान तैयार होता है, इन स्पाइट ऑफ दैट आप जो एक्शन ले रहे हैं उसमें ये तीन में से कोई एक चीज का क्या, आप देखिए आपका कौन सा सर, थर्ड कौन सा था? एनर्जी। एनर्जी, यस। या तो एनर्जी में कमी होगा, या फिर फोकस में कमी होगा, या फिर कहीं ना कहीं इंटेंशन क्लियर नहीं है, राइट। सो गोइंग फॉरवर्ड हमने फिर बात की, वाई पे क्लियर बात की थी, जहां पे हमने टोटल 9 क्वेश्चन का आंसर दिया था, एंड 9 क्वेश्चंस जो थे, मैं फिर से फास्ट फॉरवर्ड बात करूंगा। सो व्हाट इज योर करंट नेट टेक होम पर्सनल इनकम फ्रॉम द बिजनेस? हाउ हैप्पी यू आर विद द करंट लेवल ऑफ इनकम आउट ऑफ 10? आपको रेट करना था। डू यू थिंक यू डिजर्व टू अर्न मोर? यस, नो? If yes, how much net income per month you think you can start earning 1 year from which you can make you happy and feel good? So आज के डेट में क्या इनकम है, that is your point A, and कितना इनकम आपको चाहिए वो point B हो गया। If yes, mention the 3 reasons why you think you deserve to earn that much, you deserve to earn the above income. अगर आपको लगता है कि आप जो इनकम कर रहे हो आप उससे कहीं ज्यादा डिजर्व करते हो, देन पहले तो ये बताइए कि कितना इनकम आप करोगे आज से 1 साल के बाद, मतलब 1 साल का टाइम फ्रेम ले रहे हो। जो अगर आप इनकम करने लगोगे तो आप का इनकम नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, दैट विल बी योर सक्सेस, दैट विल बी योर पॉइंट बी। और आप चाहते हो कि ये आपका इनकम हो, तो आप ये लिखिए कि ये इनकम आपको ऐसा क्यों लगता है कि यू डिजर्व दिस इनकम। गिव 3 रीजंस व्हाई यू थिंक यू डिजर्व टू अर्न द अबव इनकम। नेक्स्ट, व्हाई इज this magic income number is so important or significant to you?
ये जो मैजिक नंबर जो इनकम की आप बात कर रहे हैं, ये इतना ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए? व्हाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट टू, ये भी मेंशन करना। हम लोग अपने वाई को स्ट्रेंथन कर रहे हैं बेसिकली। व्हाट वुड यू गेन बाय अचीविंग दिस गोल? देखिए, कोई भी चीज को कोई इंसान दो चीज के लिए करता है, टू अचीव समथिंग, आई मीन टू गेन समथिंग, और टू गेट रिड ऑफ सम पेन। आप ये गोल को जब अचीव करते हैं तो क्या गेन करेंगे आप? एट द सेम टाइम ये अचीव करेंगे तो आपका कौन सा पेन दूर होगा? अगर ये चीज में क्लैरिटी नहीं रहेगी तो अगेन इट विल बी लाइक नॉर्मल, हाँ बोलने के लिए बोल दिया, बट एक्चुअली यू आर नॉट सीरियस, यू आर नॉट क्लियर इवन। So what would you gain by achieving this goal? Next, why you are not making the above income as on today? आप बोल रहे आप ज्यादा इनकम डिजर्व करते हो, आप बोल रहे हो आप में ज्यादा कैपेबिलिटी है, देन फिर क्यों अभी तक ये इनकम आपने अचीव नहीं किया? Why didn't you achieve this goal already? अभी तक आपने ये पेमेंट क्यों, ये गोल अचीव क्यों नहीं किया? What's stopping you? Write down all the possible reason below. आपने ये इनकम अभी तक क्यों अचीव नहीं किया? अगर आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट है, क्या चीज आपको रोका इस इनकम को अचीव करने के? एंड देन नेक्स्ट स्टेज, व्हाट इज द प्राइस यू आर विलिंग टू पे टू अचीव द अबव इनकम गोल? व्हाट कैन यू सैक्रिफाइस और गिव बैक टू द यूनिवर्स व्हाइल अचीविंग द गोल और आफ्टर द अचीवमेंट ऑफ गोल? मैंने बताया ना, आपका इंटेंशन क्या है यहां से पता लगेगा इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए। सेल्फिश इंटेंशन है या सेल्फलेस, या फिर ये गोल इतना इंपॉर्टेंट है और इस गोल को अचीव करते हुए बेसिकली आप क्या चीज स्टेक पे लगा रहे हैं? आप पैसा स्टेक पे लगा रहे हैं, अपना टाइम स्टेक पे लगा रहे हैं, कुछ तो यू नीड टू सैक्रिफाइस। बिना सैक्रिफाइस के कुछ नहीं होता है, यू नीड टू सैक्रिफाइस इफ यू हैव बिग गोल इन लाइफ। ठीक है, आप पास्ट उठा के देख लीजिए अपना, जब इंडिया गुलाम था और इसकी आजादी के लिए कितने लोगों ने सैक्रिफाइस दी। सो लाइफ को लोगों ने स्टेक पे लगाया। आप क्या चीज लगा रहे हो स्टेक पे? आप देखो, यू हैव टू पुट समथिंग ऑन स्टेक, मनी, टाइम, एनर्जी, है ना, समथिंग यू वेरी मच, समथिंग लव्ड वन, लव्ड समथिंग यू लाइक वेरी मच, यू लव्ड समथिंग, ऐसा कुछ स्टेक पे लगाइए। मैं बार बार इस जगह पे छिछोरे मूवी का वो एग्जांपल देता हूँ। छिछोरे मूवी आप लोगों ने देखा होगा, वहां पे वो बोलता है कि हम लोग हार रहे हैं बिकॉज हम इसको चला रहे हैं, हम इसको चलने दे रहे हैं। आई एम नॉट यूजिंग दैट वर्ड नाउ। सो बेसिकली हार रहे हैं इसलिए कि हम लोग को फटी नहीं है। हाँ, हमारी फट नहीं रही है। ठीक है, तो आप जीत नहीं रहे हो बिकॉज आपकी फट नहीं रही है, और आप नहीं जीत रहे हो तब भी आपकी चल रही है। और चल क्यों रही है? आप चला रहे हो। ठीक है, तो नहीं चलना चाहिए। सो यू हैव टू पुट ऑन समथिंग ऑन स्टेक। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, आपको कोई हैबिट लाने का है, कुछ चीज अचीव करना है, और उसके लिए कुछ आपने खाना की ये करना है, वो नहीं हुआ, जाइए रोड पे जाइए 100 रुपया गिरा के आ जाइए। अगला दिन फिर आपने किया, नहीं हुआ, जाइए 100 रुपया फिर गिरा के आ जाइए। देखिए ना कैसे ये 100 रुपया आपके एक टाइम के बाद भारी पड़ेगा। पहला दिन हो सकता लगता है 100 रुपया तो गया, दूसरा दिन भी लगेगा, 4-5 दिन के बाद आपका सीरियसनेस, आप कॉन्शियसनेस कितना ज्यादा अपने गोल के प्रति होने लगेगा, आप देख लीजिए। ठीक है, सो यू विल हैव टू पुट समथिंग ऑन स्टेक। वो अगर नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, वहां पे छिछोरे में दिखाया गया है कि एक बंदा स्मोक करता है, वो बोला कि मैं स्मोक नहीं करूंगा। हीरो बोलता है मैं हीरोइन से बात नहीं करूंगा। देन एक बंदा जो है वो ड्रिंक करने वाला बंदा रहता है, वो बोलता है कि मैं ड्रिंक नहीं करूंगा जब तक हम जीतते नहीं है। एक बंदा, उसको स्लैंग्स लैंग्वेज यूज करने का आदत रहता है, वो बोलता है मैं वो लैंग्वेज यूज नहीं करूंगा। सो यू हैव टू पुट समथिंग ऑन स्टेक। आप क्या स्टेक पे लगा रहे हैं? अगर नहीं लगा रहे हैं मतलब आप सीरियस नहीं है, राइट? एंड लास्टली फ्रेंड्स, whom do you want to dedicate the achievement of the above goal and why? ये गोल आप अचीव करेंगे, इस किसको डेडिकेट करेंगे? वो एक्सरसाइज में मैंने बोला था, वहां पे आप किसी को तो डेडिकेट कीजिए, मे बी अपने पेरेंट को, मे बी अपने
बच्चे के नाम पे मैं भी भगवान को, आप जिसको भी, किसी को तो डेडिकेट करना पड़ेगा आपको, एंड क्यों करना है वो आपको मेंशन करने का। श्री राम जी, व्हाई डोंट यू फिक्स योर मोबाइल एक साइड पे, अदरवाइज ऑफ वीडियो रही है ना, वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, इतना ज्यादा आप हिल डुल रहे हैं। या थैंक यू। सो फ्रेंड्स, ये पूरा एक्सरसाइज अगर दिल से आप करेंगे, आपका वाई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एंड आई एम श्योर, अगर आपको कहीं से भी लग रहा है कि गड़बड़ आखिर कहाँ हो रहा है, तो आंसर बताने की जरूरत नहीं है। पिछले बार भी आपने बोला है, सर इंटेंशन में प्रॉब्लम है, सर एनर्जी जो चाहिए वो शायद नहीं हो रहा, या फिर फोकस नहीं हो रहा। थोड़े टाइम फोकस रहते हैं, फिर आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक ऑन द फोकस थिंग। कैसे फोकस रहेंगे अपने गोल के प्रति, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया था, शेयर भी किया था, मैं फिर से शेयर करता हूं स्क्रीन। द आंसर इज, कहां चला गया, जस्ट अ सेकंड। हम लोग मिरेकल मॉर्निंग क्लब में, वेल्थ मास्टरी क्लब में जो भी हम रिचुअल्स कर रहे हैं, दोज आर वेरी गुड, इवन वेरी पावरफुल, ऑल दीज साइंटिफिक माइंड पावर टूल्स। कहीं ना कहीं आप लोग इस चीज को मानते भी हैं, और अभी तक तो आप लोग एक्सपीरियंस भी कर रहे होंगे, दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग योर बॉडी एंड माइंड। ठीक है, बट उसमें जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, दैट इज राइटिंग। अगर आपको फोकस्ड होना है अपने गोल के प्रति, सो यू विल हैव टू राइट योर गोल्स एवरी डे। आप रीड करते हैं, हम अफर्म करते हैं, अफर्मेशन करते हैं, तो वो या विजुअलाइज करते हैं, जब हम बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे एकदम क्लियर गोल हमें दिखाई देने लगेगा। अदरवाइज क्या है ना, पूरा गोल क्लियर नहीं दिखाई देता, थोड़ा धुंधला दिखता है। तो रीडिंग, अफर्मेशन, ये जो है विजुअलाइजेशन, ये कहीं ना कहीं ये डॉटेड लाइन, डॉटेड वाला ये डॉगी है। लेकिन जब आप राइट करते हैं, आप जब लिखते हैं, आपको गोल वो पूरा क्लियर दिखाई देता है। आर यू एग्रीइंग टू इट? यस सर। एट द सेम टाइम, yes sir, जब आप एक चीज बताइए, आप शायद पढ़ रहे हैं, शायद आप बोल रहे हैं, आपका माइंड शायद लेफ्ट राइट पास्ट फ्यूचर कहीं तो जाता है, लेकिन जब आप लिखते हैं, जब लिख रहे होते हैं, राइटिंग, आपका हैंड का सीधा कनेक्शन आपका ब्रेन के साथ, आपका माइंड थोड़ा टाइम के लिए भी आउट होता है, आपका हाथ ऑटोमेटिक रुक जाता है। करेक्ट है? तो जब आप लिखते हैं, इट्स लाइक यू आर कंप्लीटली फोकसिंग ऑन योर गोल, यू आर कॉन्शियस अबाउट योर गोल। एंड जब एवरी डे आप कॉन्शियस होंगे, एवरी डे जब आप फोकस करेंगे अपने गोल के प्रति, तो आपका इंटेंशन अगर कहीं भी लेफ्ट राइट है, वो धीरे धीरे जो है लाइन पे आएगा। ठीक है, और जब आप फोकस रहेंगे, ऑटोमेटिकली उसका इंपैक्ट आपके एनर्जी पर भी पड़ेगा। राइट? सो वेल्थ मास्टरी क्लब में हम वेल्थ की बात कर रहे हैं। आज से मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, अपने गोल को लिखना है ना। कैसे लिखना है, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। राइट? सो आई एम गिविंग यू द फॉर्मेट ऑल्सो, आई विल शेयर यू इन द ग्रुप ऑल्सो द फॉर्मेट। बट अभी मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे सामने लिख लें, so that you will have a conscious approach towards your goal, and by doing so, believe me, आपका एनर्जी लेवल, आपके एक्शंस कंप्लीटली चेंज होने वाले हैं, एंड रिजल्ट्स तो गारंटीड है।
So how many of you are excited? Please. Sir. Good. Okay, तो चलिए जल्दी से आप लोग जो है पेन एंड पेपर ले लीजिए, या मोबाइल पे टाइप करना है फिलहाल टाइप कर लीजिए, लिखेंगे तो अच्छा है, ठीक है। सर आप जो गोल शीट दिए थे इससे ये डिफरेंट है? गोल शीट इज डिफरेंट। गोल शीट में क्या है ना, वो सिंगल लाइनर है, ठीक है। ये एक कॉन्शियस अप्रोच होगा। दिस इज गोइंग टू बी ए कॉन्शियस अप्रोच टुवर्ड्स योर गोल। ओके, सो मैं आप लोगों को, चूंकि हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, मैं बाकी का भी फॉर्मेट दे रहा हूँ, हेल्थ का भी, वेल्थ का भी, रिलेशनशिप का भी। बाकी अगर आपको फोकस सिर्फ वेल्थ में रखना है तो उसको ही लिखिए, लेकिन बेटर होगा आप हेल्थ का भी लिखेंगे, रिलेशनशिप का भी लिखेंगे। रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के मिरेकल मॉर्निंग क्लब में हमने उस चीज को समझा। रिलेशनशिप अगर आपका सही नहीं होगा तो आप तो ऐसे ही हाफ हार्टेड हो जाएंगे फॉर श्योर, ठीक है। सो मैं बात करता हूँ, पहले हम लोग एक एक चीज पे करते हैं। हेल्थ गोल फटाफट लिख डालिए, या फिर मैं स्क्रीन लिख डालेंगे तो अच्छा है, एक बार तुरंत कॉन्शियस भी हो जाएंगे। आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू गॉड एंड यूनिवर्स फॉर ब्लेसिंग्स। I am happy and grateful to God and universe for blessing and making me to live a long, healthy. Sir, slow, sir. I am happy and grateful to God and universe. Okay. एक काम करते हैं, ये फॉर्मेट मैं आप लोगों को दे देता हूँ ग्रुप में, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, नहीं तो फिर लिखने में टाइम चला जाएगा। बट आप लोग ध्यान से सुनिए, है ना। आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू गॉड एंड यूनिवर्स फॉर blessing and making me to live a long, healthy, energetic, stress-free, disease-free, and medicine-free life with strong immunity, full body flexibility, strength, and fitness. I'm also glad because all my body parts, organs, and cells are functioning absolutely healthy and normal. ये आपका हेल्थ गोल होगा, ठीक है। एंड बाय डूइंग सो, क्या लगता है ये लिखने के बाद आप हेल्थ के बारे में कुछ भी नहीं सोचेंगे? अगर कहीं से भी आप ओवरवेट हैं, अंडरवेट हैं, आपको ऑटोमेटिकली ये ध्यान आएगा कि यार मेरा हेल्थ से रिलेटेड कुछ चैलेंज है, वो ऑटोमेटिकली आपको दिमाग जो है आपको घंटी बजाएगा, एंड आप बिना एक्शन लिए नहीं रहेंगे। ये आप मान के चलिए, आप ये करना चालू कीजिए, लिखना चालू कीजिए, देखिए क्या इम्पैक्ट आ रहा अगले 21 दिनों में, ठीक है। नेक्स्ट इज इनकम गोल। सो हमने इनकम पे वो एक्सरसाइज करे हैं। आपका इनकम गोल्स लिखने का है। आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू गॉड एंड यूनिवर्स फॉर ब्लेसिंग एंड मेकिंग मी टू डिजर्व एंड अर्न माई डिजायर्ड इनकम ऑफ रुपीज डैश योर गोल। हाँ, जो भी आप अपना टारगेट कर रहे हैं, पॉइंट बी आपका जो भी है, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी है, पर मंथ consistently on total auto mode by doing what I love. That is, आप अपना पैशन को लिखेंगे यहाँ पे। So for example, मैंने अपने केस में लिखा है, that is educate, inspire and empower people to live their desired life by helping them to plan and manage their money efficiently and effectively through our scientific money management process. तो वहां पे आपने जो 9 जो क्वेश्चंस थे, उसमें एक ये भी था ना कि अपने गोल को अचीव करते हुए बेसिकली आप सोसाइटी के लिए क्या करेंगे, व्हाट विल बी योर गिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, आपका इंटेंशन बहुत क्लियर हो जा रहा है, दैट इज अ पॉजिटिव इंटेंशन, कि आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप दूसरे के बारे में भी भला करने का सोच रहे हैं, राइट। ये फॉर्मेट मैं आज ही शेयर कर दूंगा आप लोगों को। You'll have to write it.
एक ही बार लिखना है, 10 बार नहीं लिखना है, लेकिन रोज लिखना है, राइट। आगे बढ़ते हैं। Sir, this assignment, my inspiring income goal, I have started from 28/6/2022, last month, 28/6. Every day I'm writing. So you are writing in the same format. I am happy and grateful to the God and universe. Yes, sir. I am reading out. I am happy and grateful to God and the universe for blessing and making me to deserve and earn my desired income of rupees 1,95,000 per month. Consistently on total auto mode by doing what I love, sales and marketing of water filter, trading and investment, and manage the money efficiently and effectively through our money management process. Fantastic, fantastic. Every day morning I am writing, but I am not showing in the group. No, ठीक है, आप लिख रहे हो, that is important, right? So that is one thing. Next is your wealth goal. Income goal is per month basis pay. Wealth goal is for financial freedom, financial abundance. This should be your long-term goal. A long-term means एक बड़ा गोल होना चाहिए, एक थोड़ा सा मे बी 5 years 10 years का गोल. आप कब तक financially फ्री होना चाहते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आपको ये गोल डिसाइड करने का है, ठीक है. सो इसमें आपको क्या लिखने का है? इसमें लिखना है I am happy and grateful to God and universe because I have created a long-term wealth of rupees dash and a short-term wealth of rupees dash. So for example, I am happy and grateful to God and universe because I have created. So आप कैसे लिख रहे हैं? as if ये हो चुका है. I have created a long-term wealth of rupees 10 crore and a short-term wealth of rupees 1 crore. So you'll have to write in this. So heading में रहेगा my inspiring wealth goal. This is for completely for your financial freedom. And आज जो है मैं will you share the format in the group, sir? Completely, yes. I'm going to share the format. Okay, yeah. So ये हो गया wealth के बारे में, जहां पे आपको conscious होने के लिए you'll have to write every day. It will hardly take 10 minutes of your time. And आप ये मत बोलिए कि मेरे पास 10 मिनट समय नहीं है अपने फ्यूचर के लिए, अपने गोल्स के लिए, ठीक है. सो 10 मिनट तो आपको निकालना पड़ेगा, 10 मिनट ये निकालना पड़ेगा. आप सुबह उठ के अपने मिरेकल मॉर्निंग से पहले लिख लीजिए, या मिरेकल मॉर्निंग के बाद लिखिए, या फिर वेल्थ मास्टरी क्लब के बाद लिखिए. 10 मिनट डेडिकेटली आप बैठ जाएंगे, कॉन्शियसली आप लिखेंगे. आप देखिए अगले 21 डेज में आपको रिजल्ट दिखने लगेगा. बिलीव मी, दिस इज सो पावरफुल, ठीक है. नाउ आज जो मैं बात करूंगा वो है रिलेशनशिप पे. ऑफ कोर्स इसका वेल्थ से ऐसे देखें तो अरे वेल्थ रिलेशनशिप अलग है, वेल्थ अलग है, ये एक अलग चीज हो जाता है. बट लेट मी टेल यू, एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है. तो आई टेक अनदर 5 to 7 minutes ऑफ इट. सो ध्यान से सुनिएगा. एंड पहले तो कोशिश कीजिए, यहाँ पब्लिकली जवाब देने की जरूरत नहीं है, बट अगर मैं बोलूं आपको 10 वो इंपॉर्टेंट लोग जो आपके लाइफ में है, कुड बी योर फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, नेबर्स, है ना, रिलेटिव्स, जिनको आप सच में वो यू काउंट देम, ठीक है. आपके प्रोफेशनल रिलेशन, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, ठीक है. 10 लोगों का नाम लिखना है. आप अभी इमीडिएटली 10 लोगों का नाम नहीं लिख सकते हैं तो कोई बात नहीं है, बट 10 लोगों का नाम लिखिए और उनके अगेंस्ट में, हर एक के नाम के अगेंस्ट में आपका रिलेशनशिप कैसा है रेट करना है. 1 2 3 4 5. 1 means terrible, 2 means bad, 3 means can be better, 4 means going good, and 5 means fabulous.
अभी किसी के साथ टेरिबल है, किसी के साथ बैड है, या फिर कैन बी बेटर है, तो डेफिनेटली यू विल वांट टू चेंज द रेटिंग, करेक्ट? उसको अगर बैड है तो कैन बी बेटर कर सकते हैं, कैन बी बेटर है तो गोइंग गुड कर सकते हैं, गोइंग गुड है तो उसको फेबुलस करना चाहिए, राइट? तो कैसे पता चलेगा कि आपका रिलेशनशिप कैसा है? 10 signs of a healthy relationship, let me tell you 10 signs of a healthy relationship. ध्यान से सुनिए, ये भी मैं शेयर कर दूंगा आपको। यू रिस्पेक्ट ईच अदर, आपका सामने वाले इंसान के साथ यू रियली रिस्पेक्ट ईच अदर, यू ट्रस्ट वन अनदर। आप देखिए ये सब पैरामीटर्स है, इसमें आप देखिए कि कहाँ 1 to 10 में कितना रेट करेंगे, उसके बेसिस पे आप बोल सकते हैं। यू कम्युनिकेट वेल, you enjoy each other's company, you support each other's goal। ऐसा नहीं है कि आप कुछ बोल रहे हैं और जब आप अपने गोल के बारे में बात कर रहे हैं वो उस चीज को वैल्यू नहीं कर रहा या कर रही है, बोलते ये कैसे होगा, अरे चलो छोड़ो जाने दो, ये सब होने वाला नहीं है, काइंड ऑफ। या सामने वाले के साथ आप ऐसा करते हैं, डाउट, क्वेश्चन, ये सब करते हैं। सो दैट शोज द रिलेशनशिप विद द पर्सन। यू मेक डिसीजंस टुगेदर। अभी घर में है, स्पाउस है, तो डेफिनेटली साथ में ही करेंगे। पेरेंट हैं, बच्चे हैं, तो अगेन यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ डिसएग्रीमेंट। कोई चीज में आप एग्री नहीं कर रहे हैं तो अभी सामने वाले को बुरा लगेगा करके आप शेयर भी नहीं कर रहे, देन देयर इज सम प्रॉब्लम, ठीक है? यू लव एंड लाइक ईच अदर, एक्सेप्ट देम एज दे आर। आप उनको प्यार करते हैं, उनको लाइक करते हैं, एंड वो जैसा भी है, जैसी भी है, वो ऐसे ही उसको आप एक्सेप्ट करते हैं। You maintain a meaningful emotional connection with each other. You make the other feel loved and emotionally fulfilled. There is a difference between being loved and feeling loved. Okay? Being loved and feeling loved. I hope you understand. A thin line है. And being for each other, the last one. Being goal means with being person completely at a promised time in the promised manner, just being with them and not trying to change. तो एक दूसरे के साथ में रहना हर एक सिचुएशन में, that is called a healthy relationship. And based on these 10 points, you can rate yourself. These 10 people जो सच में आपके लिए मायने रखते हैं, अभी रिलेशनशिप अच्छा हो बुरा हो, बट दे आर, यू सिंपली कांट इग्नोर, ठीक है? अब देखिए कि आपका रिलेशन कैसा है, एंड बिलीव मी, अगर रिलेशन अच्छा नहीं है तो ये भी एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है आपके हेल्थ गोल के रास्ते में। ये आपको पुल करता है, आप स्टक्ड हैं वहां पे, उस पर काम करने की जरूरत है, उसको अब बेटर बनाने की जरूरत है। एंड बाय डूइंग सो यू विल गेट सो मच ऑफ पावर, so that you will be full of energy, you will be conscious, you will be focused towards your goal, and you will be able to take action. Otherwise ये अगर प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप वाला प्रॉब्लम है, स्पेशली इन 10 लोगों के साथ जो आपके लिए मायने रखते हैं, ये एनर्जी सकर है, आए दिन उनको फेस करना होता है, आए दिन कुछ ना कुछ हो जाता है, उसके वजह से आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, एंड आप अपने गोल से डिफोकस हो जाते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? सो इसी के साथ सेशन को यहाँ पे रोक रहा हूँ। आप लोगों को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट सेशन आई एम गोइंग टू टेक ऑन टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट।
कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता है कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। मैं बोलना चाहूंगा आपके पास बहुत टाइम है, आप टाइम को मैनेज नहीं करते हैं। एंड ये हम सबके साथ अप्लाई होता है, इंक्लूडिंग मी। बट यस, पिछले कुछ दिनों से, मैं बोलूंगा महीने अभी नहीं हुए हैं, उसमें मैं जबरदस्त तरीके से काम कर रहा हूँ और उसका मुझे रिजल्ट दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट संडे, एवरी संडे वी टॉक ऑन ए स्पेशल टॉपिक, श्री राम जी। ठीक है, सो यस फ्रेंड्स, दैट्स इट फ्रॉम माय एंड नाउ। अमित भाई ये बताएं कि ये जो आपने हमको ये टिप्स दिया है, जो हमारा गोल है हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, तो हर एक को डेली लिखना है या हमको जिस पे काम करना है उसको डेली लिखना है 21 डेज तक? मेरे हिसाब से तो हर एक को लिखिए, बिकॉज बिकॉज देयर इज ऑलवेज, अगर मान लीजिए मैं बोलता हूँ अरे मेरा तो हेल्थ अच्छा है, मुझे तो उसमें काम करने की जरूरत नहीं है, बट इसलिए लिखना है कि आपका हेल्थ अच्छा ही रहे। ठीक है, अभी अच्छा है, आगे खराब नहीं हो ऐसा तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप लिखेंगे आप ज्यादा अलर्ट रहेंगे, ज्यादा एक्टिव रहेंगे, कॉन्शियस हो जाएंगे, और हेल्थ खराब नहीं होगा, इसके लिए आप काम करते रहेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू। हाँ सर, मेरा एक बात पूछना था जी। रिलेशनशिप इज ए वेरी, क्या कहते हैं, ट्रिकी इश्यू। अब आपने 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट लोगों को आपने बताया। यस। नाउ सपोज इन योर फैमिली यस। यू हैव गॉट 2 ब्रदर्स। ओके। आपके 2 भाई हैं, और दोनों भाई के साथ आपका बहुत अच्छा रिलेशन है। ठीक है। लेकिन दोनों भाई का आपस में पड़ता नहीं, और दोनों आके दोनों के बारे में शिकायत आप ही से करते हैं। राइट। और दोनों में आप तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों के अंदर 36 का आंकड़ा है। राइट। योर एनर्जी इज गोइंग देयर। राइट। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हम्म। ये सास बहू का भी हो सकता है, बहुत सारा ऐसे, मतलब आप, मतलब रिलेशनशिप अगर आउटसाइड योर फैमिली है तो आउटसाइड फैमिली में अलग चीज होती है, अलग डायनामिक्स होते हैं। इनसाइड फैमिली आपके अलग डायनामिक्स होते हैं। करेक्ट। तो इन दैट केस व्हाट यू विल डू? सी, यहाँ पे बहुत ही क्लियर है, आप देखें कि आपका रिलेशन कैसा है दोनों के साथ। आप बोल रहे हैं दोनों के साथ आपका रिलेशन अच्छा है, एक अलग हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, भाई वाला नहीं करके। मे बी आप अपने फैमिली के साथ रहते हैं या नहीं भी रहते हैं, आपका अपना मदर के साथ, अपने फादर के साथ अच्छा रिलेशन है, लेकिन स्पाउस का आपके मदर फादर के साथ अच्छा नहीं है, और वहां पे उसके वजह से किचकिच होती है और आपके कान तक बात आती है, आप डिस्टर्ब होते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, दिस कुड बी अ वेरी गुड एग्जांपल। या भाई वाली बात भी बोले तो यहाँ पे एक चीज है, आपका रिलेशन वाइफ के साथ भी अच्छा है और पेरेंट के साथ भी अच्छा है, आपका रिलेशन दोनों भाई के साथ अच्छा है, लेकिन उनका आपस का रिलेशन अच्छा नहीं है। करेक्ट। तो यहाँ पे जो करना है वो ये है, आपको अपना रिलेशन बनाए रखना है। ठीक है, आपको किसी के साथ बायस नहीं होना है, किसी एक के पक्ष में ले लिए और आपको जज नहीं बन जाना है कि और नहीं तुम गलत कर रहे हो, तुम सही कर रहे हो। आपको एम्पैथेटिक होना है दोनों के साथ, आपको किसी एक का साइड नहीं लेना है। आप एम्पैथेटिक रहिए, दोनों के साथ एम्पैथेटिक रहिए। डिप्लोमेटिक होने में नहीं बोल रहा हूँ, एम्पैथेटिक होने बोल रहा हूँ। एंड ये उनकी लाइफ है, उनको अपना रिलेशन सामने वाले के साथ सुधारना पड़ेगा। आप दो जन का रिलेशन को सुधार नहीं सकते हैं अनटिल वो दोनों सुधारना नहीं चाहे, बिलीव मी। ठीक है, रही बात वो लोग आके आपको कंप्लेन करते हैं, ये करते हैं, तो मैं बार बार बोलता हूँ, कंप्लेन, कंपैरिजन और एक क्या चीज बोलता हूँ, क्रिटिसिज्म, इनको जगह मत दीजिए। ठीक है, बिकॉज नॉर्मली इस स्थिति में, सास बहू वाला स्थिति में, माँ आके बोलेगी सास का बुराई और सास बहू आके माँ का बुराई करेगी, तो डोंट इंटरटेन मेरे हिसाब से। ठीक है, एम्पैथेटिक होना है, लेकिन ट्राई टू स्टॉप। ठीक है, उस सिचुएशन से हटने का कोशिश कीजिएगा, बिकॉज आप जहां उस पर बात करने लगेंगे, इट्स लाइक यू आर एंटरटेनिंग। और वही तो प्रॉब्लम है। इफ यू डोंट लिसन टू योर मदर, he will think that he is listening to his wife, that's why he is not putting
any importance नहीं to नहीं you, नहीं, लिसनिंग का मतलब ये नहीं, आप समझे नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि इंटरटेन नहीं करने का मतलब है, अभी माँ जो है बहू की बुराई कर रही है और आप भी उस कन्वर्सेशन में लग गए। मैं बोल रहा हूँ आप सिर्फ सुनिए, आप उस कन्वर्सेशन का हिस्सा मत बनिए, आप कुछ बोलिए मत, आप सिर्फ सुनिए। आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। बहू बोल रही है, मैं सुन रहा हूँ, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। But you are not reaching to any solution, ना? This will continue forever. आप सर ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, छोड़ आप ये दीजिए सॉल्यूशन निकाल ही नहीं सकते हो। नहीं, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सबका प्रॉब्लम है सर ये। मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आप लेकिन इसके रूट पे कोई नहीं जाना चाहता है। प्रॉब्लम यही है, नो वन। सर आप सोल्यूशन पे जाइए मत, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है। नहीं तो अभी बड़े बड़े लोगों ने ये अभी तक हेल्प किया होता सबको। नहीं, सोल्यूशन है, प्रसन्न जी, एक मिनट, इसमें एक ही चीज आप कर सकते हो, स्पेशली जब वो सामने वाला कंप्लेन का मूड में है, आप कोई अपना ज्ञान मत दीजिए, कोई रिस्पॉन्ड मत कीजिए, ठीक है। वेट फॉर द राइट मोमेंट, जब सामने वाला आपको सुनने का मूड में है, क्योंकि उस टाइम आप समझाने की कोशिश करेंगे तो आप दुश्मन हो जाएंगे सामने वाले, ठीक है। वेट फॉर द राइट मोमेंट एंड, वो बोलते हैं ना, 9 को अगर आप इधर से देखो तो 9 लगता है, लेकिन उधर से देखो तो 6 लगता है। तो यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, दो जन लड़ रहे हैं, दो पार्टी है, एक बोल रहा है ये तो 9 है, दूसरा बोल रहा है 6 है, ठीक है। आप पहले उसके साथ एग्री कर लो, हाँ आप सही बोल रहे हो, अरे 9 है, अच्छा लेकिन वो 6 बोल रहा है, सच में वो 6 बोल रहा है क्या? एक काम करते हैं ना, जरा उधर आके देखते हैं, और उसका हाथ पकड़ के उस साइड लेके जाइए। आप देखेंगे, अरे देखो तुम सही बोल रहा था, उधर से 9 दिखाई दे रहा है, लेकिन ये भी सही बोल रहा, इधर से तो 6 दिखाई दे रहा। तो ये एंगल जब सामने वाले को रखते हैं, सास को बहू का एंगल जब आप दिखाएंगे, लेकिन वो तब दिखा पाएंगे जब वो सुनने के मूड में, और सेम चीज वाइफ को माँ का एंगल दिखाएंगे। वही तो सर, सुनने के मूड में रहने से ना, सुनने के मूड में नहीं रहने से आप कहाँ से सुनाएंगे? नहीं ऐसी बात नहीं है, तो कंप्लेनिंग एटीट्यूड में ही रहते हैं ना वो लोग। नहीं ऐसी बात नहीं है। बोलिए कोई भी मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। मैंने इस सिचुएशन को ओवरकम किया है, और आज के डेट में मेरी माँ और मेरी वाइफ का रिलेशनशिप माँ बेटी का है, ये मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन एक टाइम था जब एक दूसरे को मतलब बहुत एंटी चलता था, ठीक है। इसको मैंने इसी तरीके से हैंडल किया है, और आज दोनों में बहुत जबरदस्त रिलेशनशिप डेवलप हो गया। अब वो लोग आपस में बात करते हैं, और मेरे से जब बात होती है तो हमारी बातचीत होती है, फिर उनकी बात नहीं होती, वो कंप्लेन वाला बात नहीं होता। आई हैव ओवरकम इट पर्सनली, और मैंने सिर्फ यही किया है। 6 और 9 वाला गेम जो मैंने बताया ना, एकदम ऐसे ही किया है। वो एंगल दिखाना जरूरी है, और वो जब दिख जाएगा ना, सामने वाला समझेगा भी और अंडरस्टैंड करेगा। प्रॉब्लम क्या होता है सर, कि जब एक इंसान दूसरे इंसान के साथ अपना संपर्क सुधारना चाहता है, तब वो उसका एंगल देखेगा। जब सुधारना ही नहीं चाहता है तो छोड़ दीजिए उनके हालों पे, तो आप पूछते हैं ना, तो आप अभी अगर छोड़ देते, मान लीजिए रेखा जी को और आपके माँ को छोड़ देते, तो आप पूछते ना, क्योंकि बिकॉज यू लव बोथ। शुरुआत में मैं पिसा था, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग जब डेवलप हुआ तो मैं पिसा नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग। आप अगर उसमें इन्वॉल्व होंगे तो पिसेंगे, नहीं तो वो एक अलग आइडेंटिटी है, वो एक अलग आइडेंटिटी है, और उनका एक अलग प्रॉब्लम है, उससे आपको डिटैच तो करना पड़ेगा। वो डिटैचमेंट एक अलग पार्ट है, अलग सब्जेक्ट है। एक ही घर में कैसे डिटैच होंगे आप? एक ही घर में तीनों रहते हैं, कैसे डिटैच? जी ये तो बहुत लंबी डिबेट वो मास्टरी, दैट्स व्हेयर वो मास्टरी रिक्वायर्ड है, बोलते हैं ना। आप देखते हैं ना, कैन टेक अ बिग सेशन ऑन दिस, पेड वाला, सब लोग आ जाएंगे सर। एग्जैक्टली। सो एक बात ध्यान से सुनिए, कई बार ऐसा होता है, चलिए थोड़ा सा 2 लाइन में और मैं संपर्क करता हूँ, बताता हूँ। मैं वाइफ साउथ इंडियन है, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो ससुराल जब जाते थे ना, ये लोग अपना तमिल में स्टार्ट हो जाते थे, मेरे को कुछ नहीं समझ में आता था, ठीक है। तो कुछ तो चल रहा बैकग्राउंड में, लेकिन मैं सुनना बंद कर देता था थोड़े टाइम के बाद, और मैं या तो मोबाइल पे यूट्यूब में घुस गया, कुछ तो देख रहा हूँ, एंड सच में
वो एक नॉइज जो है शायद किसके चल रहा है, अदरवाइज मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता, क्योंकि मैं वहां पे अपना ध्यान फोकस जो है हटा दिया। कई बार आप नोटिस करेंगे, आप ड्राइंग रूम में बैठे हैं, टीवी में कुछ चल रहा, आपके बच्चे और अलग लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आप कहीं और हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आप वहां हैं लेकिन वहां नहीं है। तो इट्स ऑल अबाउट माइंड। घर में सास बहू में लड़ाई चालू हो गया, हो रहा है, आप वहां पे ध्यान नहीं दिए, काम खत्म है, ठीक है, आप वहां पे इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपका माइंड उधर आ जाता है। अच्छा, सास ये बोली वो बोली, फिर बाद में आप अपना जजमेंट सुना रहे, नहीं नहीं तुम जो ऐसा बोली थी ना वो गलत बोली थी, तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। माँ को जाके बोल रहे, तुम ऐसा कैसे बोल दी मेरा बीवी को। बस खत्म कहानी। आप कुछ नहीं करना है, जस्ट अपना माइंड को हटा देने का, तो मास्टरी चाहिए उसमें, ठीक है। ठीक है, और ऐसा हम लोग करते हैं, उसमें हम लोग मास्टर हैं। यहाँ जब बीवी और उसकी बात आ जाती है तो हम हीरो बनने लग जाते हैं, हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमको नहीं बनना हीरो वहां पे, और उनको रहने दीजिए, अपना माइंड को हटा देने का, दैट्स इट। वही ना प्रॉब्लम है, आप नहीं सुनेंगे तो बोलते नहीं सुनता है ना, बेटा सुनता है वो नहीं बोलते बोलना नहीं। है सर, आई अंडरस्टैंड जो सर ने बोला है ना, यस आई अंडरस्टैंड। हाँ सर इधर में सुपर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं। यस यस, मैं इसको सबके घर में ये प्रॉब्लम है, हाँ सबके घर में ये प्रॉब्लम है। मतलब ये दोनों को छोड़ दीजिए, अपने आप सेटल कर लेंगे। एग्जैक्टली Settle their scores. एग्जैक्टली। आप इन्वॉल्व भी मत होइए उसमें। Yes. नहीं होता है, प्रॉब्लम यही है, नहीं होता है वो, उसमें बड़ा मतलब एनर्जी जाता है। शाम को उनको घुमाने पहले जरूर ले जाइए नहीं दोनों होता को है, तो साथ बस में। बंद कीजिए, ये होता है बोलिए, होता है बोलिए, वो होगा, ठीक है, राइट। So thank you everyone. I hope we had a great time, and we'll see you tomorrow. Bye bye. सर वो स्क्रीनशॉट अभी भेज दीजिए प्लीज। अभी इमीडिएटली मैं भेज रहा हूँ, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू Okay. सर, Thank you, sir. Thank you. Bye-bye. Thank you. एवरीवन Have a great एंजॉय। day, sir. Great day, Very good. great weekend. Yes, thank you.